Okay. So we will do a few more programs as I have said. So let me just open it. A few programs on ethers only, but these are bigger programs. Okay. So suppose write a program to enter the marks of a student in 4 subjects. Suppose the any 4 subjects, and then we need to calculate the aggregate. Then suppose we need to calculate the total, and we will display the grades. Fine. So first we have a student, and we will take the marks of the student in 4 different subjects, and we will calculate the total marks, and we will display division. Okay, fine. So first, in order to do that, we need to take the marks of 4 different subjects, right? So enter the marks of subject 1, and suppose the variable which I have taken is I'm just keeping for the first time I'm keeping it very simple. I'm declaring everything to be integer. If you want to put the marks as float, you may do it. Suppose I'm taking it as marks 1. Fine. So this I will take 3 times more because there are 4 subjects. So this will be marks 4, subject 4, marks 3, subject 3, marks 2, subject 2. Since I have taken int marks 1, marks 2, marks 3, marks 4, these are the variable name. If you want, you can take the variable name as ABCD also, XYZ, anything, MNN, anything. But since I have said that it is obvious that the way we take the variable name, that will give a notion to the programmer that what can be the usage of this variable. So we try to follow a certain format, certain naming convention, so that it can give a glimpse of what this variable will actually hold, or it can take the data types. So by telling a variable to be marks, it gives a concept that okay, this variable can be linked to the concept of storing value of certain marks. Okay. Achha. After taking all this, we will do the total. Total means marks 1 plus marks 2 plus marks 3 plus marks 4, and we need to save it. Suppose we are saving it in the variable total. Fine. So again, I will have to take here also total. Fine. Now, how can I take the average? Suppose the variable name is average. So the total which I will get, if I divide the total by 4, that will give me the average, right? Here, if you have, even if you have taken the marks in the integer, it may happen that divided by 4 होने से which कुछ decimal value दे रहा है ना, but total तो आपका आपने integer लिया है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देंगे to be on the safe side. ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइप कास्ट कर दिए, हम क्या करेंगे, हम एवरेज जो वेरिएबल है उसको हम लेंगे ही फ्लोट में. हो गया, मेरा काम खत्म. तो सपोज पहले हम लोग प्रिंट करा देते हैं. हम एक बार
द टोटल मार्क्स इज बोल के प्रिंट करवा देते हैं टोटल को, और देखिए टोटल में है ये वैल्यू, एंड द एवरेज मार्क्स इज बोल के हम लोग प्रिंट करवा देते हैं एवरेज को। हम 0.2 कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल पे बात हम ज्यादा नहीं चाहते। एवरेज AVG इज द वेरिएबल विच आई हैव टेकन। मेरा मार्क्स एंट्री हुआ यूजर से, मेरा कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन होने के बाद मेरा टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब इतना तक मेरा हो गया। अब डिस्प्ले द ग्रेड्स, डिस्प्ले द ग्रेड्स जहां कहीं भी आएगा वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा कि आपका ग्रेड कौन कौन से चीज के भीतर लाई कर रहे हैं ना। हम लोग क्या करता है, हम मेरा एवरेज अगर 75 से ज्यादा है तो फिर हमको ग्रेड ए मिलेगा, अगर उससे कम है कुछ मिलेगा, तो बहुत सारा कंडीशंस होता है। पहला कंडीशन क्या होगा, if your average is greater or equal to 75, the value 75, then it will show that distinction. ठीक है, else if क्या हो सकता है, आपका एवरेज जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 60 से 75 के भीतर लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर होगा आपको क्या शो करेगा, आपको शो करेगा फर्स्ट डिवीजन। एल्स क्या हो सकता है, दो कैटेगरीज हुआ, 75 से ऊपर, 60 to 75 के भीतर। एल्स आपका हो सकता है कि आपका 60 to 50 के भीतर लाई कर रहा है। 60 to 50 के भीतर हम लोग बोलते हैं क्या, सेकंड डिवीजन। ठीक है, और एल्स आपका लास्ट होगा क्या, लास्ट हो सकता है कि आपका 40 to 50 के भीतर हम लोग बोलेंगे वो आपका थर्ड डिवीजन है। और अगर आपका 45% का भी लेस है, 40% का भी लेस है, मतलब वो आपको फेल प्रिंट कराएगा। राइट, so every condition, since it has a single statement to every condition, if का true होगा तो single statement, else का true होगा तो single statement, is else if का true होगा तो single statement, is else का single statement, तो इसलिए हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब अगर आपका एवरेज 75 से ऊपर का वैल्यू है तो आपको डिस्टिंक्शन दिखाएगा, एल्स अगर आपका 60 to 75 है फर्स्ट डिवीजन दिखाएगा, एल्स अगर आपका 50 to 60 के भीतर है सेकंड डिवीजन दिखाएगा, एल्स अगर आपका 40 to 50 के भीतर है आपको थर्ड डिवीजन दिखाएगा, और एल्स अगर कहीं पे भी आपका कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपको फेल दिखा देगा। ठीक ना, अच्छा तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने मार्क्स का इसका गलत, ठीक है, हम फेल का पहले दिखाते हैं। 35, 25, 21, 26, so I have failed. My average marks is 26 point something. I have failed because 40 से ऊपर हुआ नहीं। अब चलो कोई अच्छा सा मार्क्स का दिखाते हैं। 80, 95, 82 and 89. My percentage is 86.5 and it's a distinction. ठीक है, so this is the way how when we have multiple conditions to test, कि बहुत सारा टाइप का कंडीशन हो, एक ही कंडीशन नहीं है कि if और else में बस काम खत्म कर देंगे। मल्टीपल कंडीशंस जब होते हैं हम लोग else if का इस्तेमाल करते हैं, है ना।
देखो एलसीफ 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 और अंत में इस एफ के लिए ये लास्ट का एल्स रहेगा ही रहेगा, है ना। देखते हैं अगर नहीं रहता है तो क्या करते हैं। The average marks is this. कि अगर ए एल्स नहीं रहते तो क्या करते हैं देखते हैं। 25, 26, 23, 28 देखो टोटल और एवरेज तो दिखा है, फेल दिखा दिए, है ना। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल। चलो और एक एग्जांपल करते हैं। सपोज ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स हम लोग इफ एल्स में करते हैं, तीनों नंबर का टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग पहले तो समझ लिए कि हम लोग तीन नंबर लेंगे, नम वन, नम टू, नम थ्री। चलो ले लिए, अभी एक एक करके पूछेंगे। इंटर नम वन, हम उसको enter num1 num2 num3। ठीक है, num1 num2 num3 तीनों नंबर हो गया। अब मेरा कंडीशन क्या क्या हो सकता है। एक कंडीशन मेरा हो सकता है कि मेरा num1 इज ग्रेटर देन num2। इफ दिस इज द केस, आपका num1 num2 से बड़ा हो गया और उसके साथ क्या होना है, अगर आपका num1 num3 से भी बड़ा है तो what I will print, I will print that num1 is largest। ठीक है, ये मेरा एक ब्लॉक में जाएगा। else if num2 num3 से बड़ा है and also num2 num1 से बड़ा है तो I will say my num2 is largest। फाइन, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो I will say that num3 is largest। देखो यहाँ पे हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किए हैं, है ना, क्योंकि ये इफ कंडीशन के लिए मेरा एक से बढ़कर स्टेटमेंट्स है, इसलिए हम एक एक स्टेटमेंट ब्लॉक में रखें। अगर मेरा num1 num2 से बड़ा है एंड ऑल्सो num1 num3 से बड़ा है तो num1 लार्जेस्ट। एल्स अगर मेरा num2 num3 से बड़ा है एंड ऑल्सो num2 num1 से भी बड़ा है देन num2 इज लार्जेस्ट। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो मेरा num3 लार्जेस्ट है। इजी, चलो रन करके देखते हैं। सो सपोज 12, 23 एंड 9, num2 इज लार्जेस्ट। फाइन, कोई और करते हैं। 12, 14, 16, num3 is largest, है ना। So this is the way how we use
नेस्टेड इफ एल्स, तो बहुत सारा चीज हो सकता है। आपको बोला जा सकता है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द एग्जामिनेशन रिजल्ट। सो एग्जामिनेशन रिजल्ट मींस कोई आपसे मार्क्स पूछेगा, एंटर योर टोटल मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल शो वेदर इट्स अ डिस्टिंक्शन और फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और इज अ फेल, जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड। हम लोग यूजर से बस मार्क्स लेंगे और वो मार्क्स का वैल्यू कैसा है उस कंडीशन में हम दे देंगे। सो बहुत सारा प्रोग्राम अभी हो सकता है ना, नेस्टेड इफ एल्स। So these are the another two varieties of using the nested if else concept which I wanted to show. Okay, so since I have finished this, so in the next video we will begin with the theoretical portion of switch case which was left, and then after finishing the switch case I will also explain the programs related to switch case. Thank you.